Hello, friends. Welcome to episode 33 of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहां पर हम लोग बात करते हैं of all things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, where we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम बात करेंगे about submission. What is the power of submission? Are we utilizing this power in our lives or not? और अगर कर भी रहे हैं तो how should we utilize this power properly? Submission is one of the most misunderstood words. If I feel बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, many people might be thinking that to put ourselves under someone's submission means that हम अपने आप को किसी के अधीन कर रहे हैं. We are putting ourselves under someone's authority. या फिर people think about submission as dancing to someone else's tunes, किसी और के इशारे पे हमेशा नाचते रहना. या फिर many people think about submission to be subservient to someone else and not being able to speak up our own mind, कि किसी के नीचे हमेशा दबे रहना और ना चाहते हुए भी किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहना जबकि हम सहमत हो उनसे या ना हो, etc. 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 Actually, I'm not talking of that kind of submission, जहाँ पर a person can even lose their own identity. मैं किसी ऐसे समर्पण या submission की बात नहीं कर रहा जहाँ पर हमें अपनी पहचान खोनी पड़ जाए. Rather, I'm going to be talking about that kind of submission where we willingly, joyfully immerse ourselves into a higher cause that we believe in. Or I'm talking about a kind of submission where we readily want to follow the instructions of our mentor who we find very inspiring and we want to be like them. That kind of submission I'm going to be talking about today. दरअसल मैं किसी ऐसे समर्पण की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खुशी खुशी अपनी मर्जी से डूब जाते हैं किसी ऐसे काम में या किसी ऐसी हायर पावर या हायर कॉज के प्रति, या फिर जहाँ पर हम अपने मेंटर जो कि हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, हम उनकी हर बात या हर सिखाई हुई चीज को खुद ब खुद अमल करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं. This kind of submission actually liberates us. It inspires us. It makes us do more than what we think we can actually do. ये हमें ज्यादा अच्छा बनने में मजबूर कर जाता है और हम जो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम वो काम भी कर लेते हैं. I'm going to be talking about that kind of submission. तो आइए बात करते हैं कि ये power of submission क्या है, इसे कैसे यूज करना है और किस प्रकार से how does it help us to be more successful in life. Let's talk a little bit about it. I'll be sharing some personal tips here because being an IIT and मुझे भी actually अपने आप को to put under someone's submission, that idea itself did not gel with me. तो मुझे भी इसको शुरू में समझने में और अमल करने में दिक्कत आई थी. So from my personal experiences, I can share some insights and some tidbits which you might find useful. First and foremost, we all need to be in submission to a higher power, which gives a meaning and purpose to our life and also helps us to develop faith. ये तो सभी जानते हैं कि हम सब लोगों को हमेशा जिंदगी में किसी हायर पावर, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी को एक मतलब मिलता है, मायने मिलता है और उससे हमें फेथ डेवलप करने में आसानी होती है. क्योंकि हम सभी लोगों के ड्रीम्स होते हैं. We all have dreams and many a times we need to save those dreams from the negative influences of this world. जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं इस दुनिया के, हमें उनसे अपने ड्रीम को बचाने होते हैं. और ऐसे समय में when we have faith in a higher power God, that उन्होंने हमें as a junk नहीं बनाया, He did not make us junk, that our dreams are actually very precious. तो ये जो thought है, जो faith है, it helps us protect our dreams from falling apart. So being in submission to a higher power always helps us to develop and increase our faith, and being in submission to a higher power also removes our doubts and fears and gives us a clarity of vision for our future. तो जब भी हम लोग जो है समर्पित होंगे, एक समर्पण की भावना रखते हैं भगवान अपने हायर पावर के प्रति कि मेरा जिंदगी में एक बहुत हायर पर्पस है, भगवान ने मुझे किसी खास मकसद के लिए बनाया है, तो आपके जो ड्रीम्स हैं आपको उनको हमेशा पूरा करने में मदद मिलेगी और कोई भी जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो आपको छुएंगे नहीं और एकदम फ्यूचर के बारे में आपको एकदम क्लियर विजन मिलेगा.
दूसरी चीज क्या है कि सबमिशन की जो भावना होती है वो हमेशा हमें ज्यादा टीचेबल बना के रखती है. वी ऑलवेज बिकम मोर टीचेबल व्हेन वी आर इन सबमिशन. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नीड समवन इन आवर लाइव्स हु इज मोर नॉलेजेबल देन अस इन सर्टन एरियाज. ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि हमें जिंदगी में सब कुछ ज्ञान है. हमें हमेशा किसी न किसी जरूरत पड़ती है जिन्हें ज्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जहां हमें जरूरत है उसकी. और वी हैव टू एक्चुअली होल्ड देयर हैंड. जो भी हमें टीचर मिलते हैं, वी हैव टू एक्चुअली होल्ड देयर हैंड्स एंड वी हैव टू लेट देम टेक अस टू अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हम लोगों ने स्कूल में भी यही किया. हम लोग अपने आप को टीचर के प्रति हमेशा सबमिटेड रखते थे. और सम ऑफ अस कैन इवन बिकम लकी इनफ. हमें कुछ लोग ऐसे लकी होते हैं जिनको कुछ ऐसे मेंटर मिल जाते हैं लाइफ में हु आर द एपिटमी ऑफ सक्सेस इन देयर फील्ड, जो कि पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं आप में एंड दे हेल्प यू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली एंड दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस एंड विजडम व्हिच यू कैन यूटिलाइज. तो ऐसे समय पे क्या होता है कि फॉर अस टू बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टीचर्स एंड द मेंटर्स दैट वी आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव इन आवर लाइव्स, वी हैव टू बी इन सबमिशन टू देयर विजडम. We have to be in submission to their experience in life and we have to be in submission to their teachings. For example, कोटा जो है राजस्थान में, it is the mecca of IIT entrance examination coaching, जहाँ पर हर साल more than 1 lakh students come and वो वहीं पर रहते हैं 2 साल के लिए. They tear themselves apart from their families. वो फैमिली से दूर होके 2 साल वहाँ रुक के they basically put themselves under a grueling condition and they submit themselves. वो पूरा अपने आप को समर्पित कर देते हैं to that draconian system of coaching because उनको पता है कि अगर वो अपने आप को सबमिटेड रखेंगे, टीचर्स जो सिखाते हैं वैसा करेंगे और जो जो उनको बताया जा रहा है वो करेंगे, तो शायद उन्हें एक सीट मिल जाएगी in the coveted IIT, Indian Institute of Technology institutes. और ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि ये सब पॉसिबल तभी हो पाता है जब लोग जो है बिल्कुल अपने आप को समर्पित रखें उस सिस्टम के जहाँ से उनको वो सब चाहिए, अपना गोल्स जो वो पूरा करना चाहते हैं लाइफ में. मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन एनी फील्ड दैट आई नो ऑफ, जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आर्ट्स में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे इंजीनियरिंग में, साइंसेज में, आई ऑलवेज नो दैट दे हैव सबमिटेड देमसेल्व्स टू समबडी हु वाज मोर सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, जिनकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज को उन्होंने यूटिलाइज किया. तीसरी चीज, लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप. दोस्तों, लीडरशिप रोल चाहे किसी भी फील्ड में हो, इन एनी फील्ड देयर आर लीडर्स हु हैव टीम्स, हु हैव फॉलोअर्स हु दे लीड. और जो टीम होती है और जो लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं, उस टीम का एक कॉज होता है, एक पर्पस होता है. एंड द लीडर का जो रोल होता है, इट इज ऑलवेज अबाउट हेल्पिंग एवरीवन इन द टीम टू फुलफिल दैट कॉज. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स में अगर एक टीम बनती है एंड द कॉज इज एंड द गोल इज टू विन द वर्ल्ड कप, तो उस टीम का जो कप्तान होता है, लीडर होता है, हिज गोल इज टू मेक श्योर दैट द होल टीम फंक्शंस प्रॉपर्ली, और किसी भी कीमत पे वो पूरा बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगा के दे हैव टू अचीव दैट कॉज व्हिच इज टू विन द वर्ल्ड कप. नाउ द फॉलोअर्स द लीडर हैज, जो लीडर होता है उसके नेचुरली फॉलोअर्स भी होंगे. सो द फॉलोअर्स दैट द लीडर हैज कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. और ये 4 टाइप्स क्या है? You can have, a leader can have followers who are devoted, a leader can have followers who are submitted, a leader can have followers who are detached, and then a leader can have followers who are like bystanders. आइए इसका मतलब समझाता हूं मैं. When a leader has devoted followers, then those devoted followers, they look at the leader like a god-like figure. वो उसको भगवान की तरह देखते हैं और उसके सारे के सारे मिस्टेक्स को वो आंखों उसको इग्नोर कर देते हैं, इस तरीके से उसको देखते हैं. और जब डिवोटेड फॉलोअर्स होते हैं तो वो एक कल्ट वाली फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है उस ग्रुप में, उस टीम में, फॉलोअर्स के अंदर. दूसरे टाइप के फॉलोअर्स होते हैं सबमिटेड फॉलोअर्स. और सबमिटेड फॉलोअर्स क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज इन सबमिशन टू द लीडर. वो हमेशा लीडर के प्रति समर्पित रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि लीडर जो है वो टीम के गोल के प्रति समर्पित है. Because they see the leader is submitted to the goal of the team and he keeps the whole team united around the goal. और वो देखता है कि लीडर जो है इंश्योर कर रहा है, वो कमिटेड है कि पूरी टीम सक्सीड करे उस गोल को अचीव करने में. और ज्यादातर होता क्या है कि जब लीडर जो होता है ऐसी टीम का, वो लीडर भी सबमिटेड होता है टीम के प्रति. ही इज ऑलवेज इन अ सर्वेंट लीडरशिप मोड.
टीम जो होती है, फॉलोअर्स जो होते हैं लीडर के प्रति सबमिटेड होते हैं, लेकिन लीडर जो है अपनी टीम के प्रति समर्पित होता है कि उसको उनके लिए कुछ भी करना पड़े, ही ट्राइज टू डू व्हाटएवर बेस्ट ही कैन, ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप आई फील। तीसरे तरीके के फॉलोअर्स क्या होते हैं? वो होते हैं डिटैच्ड फॉलोअर्स। डिटैच्ड फॉलोअर्स मतलब they are totally detached, not committed either to the leader or to the team or to the cause. उन्हें किसी चीज का मतलब नहीं है, मन किया कर लिया, नहीं किया नहीं किया। They are very much defocused also, और मतलब ऊपर नीचे उनका माइंड होता रहता है। ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि यही होता है बाहर की दुनिया में कि टीम्स बनती हैं लेकिन ज्यादातर फॉलोअर्स जो होते हैं दे रिमेन डिटैच्ड। चौथे टाइप के फॉलोअर्स होते हैं जिसे मैं कहता हूं बाईस्टैंडर्स। बाईस्टैंडर्स मतलब वो जो राह चलते लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं, ऐसे। You know, these are the kind of people who we see today, you know, when there is a political convention या political rally, तो सिर्फ सीट्स भरने के लिए कि भाई लीडर आ रहा है कुछ स्पीच देने के लिए, तो people just pick up बाईस्टैंडर्स, कि चलो उनको प्रॉमिस किया खाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, they promise food and money, and they're just taken there just to sit and fill up the seats, and these are the kind of followers which are called bystanders, So दोस्तों, in any kind of leadership, I feel that there has to be a quid pro quo. The leader has to be in submission, because that's what gives the leader the power. लीडर को अपनी पावर मिलती है बिकॉज वो समर्पित होता है टू अ हायर कॉज, या फिर वो लीडर सबमिटेड होता है, समर्पित होता है किसी अन्य बड़े लीडर को, और उस लीडर की जो टीम होती है, दैट टीम इज इन सबमिशन टू द लीडर बाय इटसेल्फ, एंड दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप आई फील। सबमिशन से और क्या मिलता है हमें? सबमिशन से हमें मिलती है ह्यूमिलिटी। सबमिशन ऑलवेज गिव्स अस ह्यूमिलिटी, इट मेक्स अस हम्बल। क्यों? बिकॉज ऑटोमेटिकली हमारी जो ईगो होती है इट बिकम्स लेस, बिकॉज हमें मालूम होता है कि समवन और सम हायर पावर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सक्सेस। तो ऑटोमेटिकली वो जो आई मी माई सेल्फ, मैं वाली जो फीलिंग होती है वो अपने आप कम हो जाती है, एंड प्राइड डजंट कम इनटू द प्ले। सो व्हेन यू आर इन सबमिशन, always you'll be remaining humble. That is what I have seen. And if somebody is not in submission, if somebody is very arrogant, I know that that leader is not in submission to anyone. He is demanding things rather than earning things from his followers. और क्या होता है सबमिशन से हमें क्या मिलता है? Also submission to a higher power gives us strength. It makes us strong. It makes us fearless. जब हम अपने आप को किसी हायर पावर या मेंटर की अथॉरिटी में अपने आप को रख देते हैं, then we automatically feel safe and secure and we are able to control our fear. उस वक्त क्या होता है कि हमारे अंदर एक बहुत ही सुरक्षा की फीलिंग आ जाती है, हम अपने जो fears होते हैं, डर होते हैं, उन्हें काबू कर लेते हैं। So अगर आपको, if you want to be a leader that wants followers to be in submission to you and your cause, then you must be in submission to another leader or God. अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपके सबमिशन में स्वेच्छा से रहें, आप जिस कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके सबमिशन में रहें, तो हमेशा उनको दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए कि आप भी सबमिशन में हैं किसी लीडर के और भगवान के। एंड रिमेंबर, आपकी जो फॉलोअर्स हैं दे विल फॉलो यू नॉट बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, कि आप कितना अच्छी बातें करते हैं, कितनी अच्छे आपका बिहेवियर कितना अच्छा है। दे विल नॉट फॉलो यू बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, they will follow you because of your vision and your cause and your character. So मेरे हिसाब से लीडरशिप में कभी भी one should not indulge or promote hero worship. Hero worship जो है लीडरशिप में कभी आनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक ही राय दूंगा कि सबमिशन की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। The power of submission is huge. It's one of the 3 big powers in this universe. The power of unity and the power of affirmation, spoken word. Power of submission is a very huge power. लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए जिंदगी में हमेशा you try to pick the right mentor always to make sure कि आपके जो मेंटर है, जिनको आप मेंटर मान रहे हो, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करिए, उनकी पास्ट हिस्ट्री चेक कीजिए, मेक श्योर दैट दे कैन नॉट हार्म यू। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है कि पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर पीपल विदाउट चेकिंग देयर क्रेडेंशियल्स एंड देयर पास्ट, और बाद में पता लगता है कि दिस पर्सन टर्न्स आउट टू बी अ फेक। Recently there was a very huge incident like that in Australia, where a person was a social influencer having millions and millions of followers, and then suddenly it turned out that everything she was talking about was fake.
सो चूज योर मेंटर्स एंड टीचर्स वाइजली। यहाँ पर अपने दिल की फीलिंग को भी फॉलो कीजिए, फॉलो योर हार्ट। एंड ऑल्सो कट सम स्लैक टू योर मेंटर्स। जो आपके मेंटर्स हैं उनको थोड़ी सी गुंजाइश भी दीजिए, बिकॉज वो अपनी लाइफ में हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है एक बार मैं एक बहुत ही फेमस इंडियन म्यूजिशियन की कहानी सुन रहा था। आई वॉज रीडिंग अबाउट अ फेमस इंडियन म्यूजिशियन who went to a particular guru or a teacher to learn something, and then उन्होंने एक बार उनको देख लिया that he was eating non-veg, and for this musician from India who was a pure Brahmin vegetarian, it was sacrilegious। ये बहुत बड़ा एक प्रकार का उनके लिए वो था कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे गुरु भी वेजिटेरियन होना चाहिए, और इसके चक्कर में उन्होंने अपने नॉन वेजिटेरियन खाते हुए गुरु को उन्होंने छोड़ दिया, बिकॉज उनकी नॉर्मल फूडिंग हैबिट जो थी उनको ठीक से समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम उतना उलझ के ना रह जाएं कि वी आर नॉट एबल टू सी द लार्जर गुड, यू नो। एंड बिसाइड्स बीइंग इन सबमिशन टू गॉड और हायर पावर, बिसाइड्स बीइंग इन सबमिशन टू योर मेंटर टीचर्स, और उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। यहाँ पर आई वांट टू मेंशन दैट, यू नो, व्हेन यू आर इन मेंटरशिप टू योर teachers, there is a specific time limit for that. For example, if you want to learn a particular sports, then you want to be in submission to your mentor for the time that you are learning that sport. ये नहीं कि पूरी उम्र ताउम्र आप उनके submission में रहे। So when you are in a submission to a teacher or a mentor, there is a specific time period for that. But of course, you should be in submission to God or a higher power throughout life. And also one should be in submission to close relationships in life. For example, husbands should be always in submission to their wives. उनकी well-being, उनकी खुशी, that should be the prime motive of their life. वो अपने को बहुत सारी चीजें sacrifice करके they should try to make them happy. And similarly, wives should be also in submission to their husbands, because this is the most sacred of relationships. वाइफ जो है बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी हस्बैंड की खुशी के लिए बहुत कुछ करती हैं, होना भी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी इन सबमिशन टू देयर पेरेंट्स एटलीस्ट व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, जब उनको सही गलत के बारे में पता नहीं होता है, व्हेन दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे शुड ऑलवेज बी इन सबमिशन टू देयर पेरेंट्स एंड डू व्हाटएवर द पेरेंट्स गाइड देम टू डू। And then the parents should also be in submission to the children till a certain age, जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। तो पेरेंट्स जो हैं वो भी दे हैव टू बी इन सबमिशन टू देयर चिल्ड्रंस वेलबींग। बहुत सारे सैक्रिफाइस करके पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो दोस्तों, these were some of my tips that I wanted to share with you about submission, what I have found useful in my life and what I have personally experienced in ourselves, in our journey so far towards understanding and utilizing this power in our lives. I'm sure that you will also go ahead and inculcate this into your life. Take care, all the best, I'll talk to you next time. Bye for now.